Assalamu alaikum everyone. Today the topic that we are going to study is flow of energy, and it's the second lecture of chapter number 25. Following are the contents of today's lecture. First of all, we will study concept of trophic level. Then comes the productivity, energy flow and ecological pyramids. By the end of this section, students will be able to describe importance of trophic level in ecosystem. You can define different types of ecological pyramids, and you can also explain the productivity of different ecosystem. Ecosystems are transformers of energy. By grouping the species in a community into trophic levels of feeding relationships, we can follow transformation of energy in the ecosystem. So ecosystem क्या है? These are the transformers of energy. एक ecosystem के अंदर different organisms या communities रहती हैं और उन organisms के दरमियान energy का transfer होता है. So in simple words, we can call them as transformers of energy. By grouping the species in a community, we have made trophic levels. There are different trophic levels in an ecosystem और हर एक trophic level के अंदर different species present होती हैं, and these species that are present in different trophic level, they interact with each other, they exchange energy and thus makes an ecosystem working efficiently. Species are classified to trophic levels on the basis of their main source of nutrition and energy. तो हमने ये तो कह दिया कि ट्रॉफिक लेवल में हमने डिफरेंट स्पीशीज को रखा है, बट हाउ डू वी क्लासिफाई डिफरेंट स्पीशीज इन अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल? सो इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि उनके फूड का सोर्स क्या है, और सेकेंड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग एनर्जी. सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू फैक्टर्स we have classified species into different trophic levels. Concept of trophic level and productivity. These figures explain the concept of trophic level. As I have already told you that different species are organized in different trophic levels, and there are 5 trophic levels: T1, this is T2, T3, T4 and T5 is not shown here, while T5 consists of decomposers which include bacteria and fungi. So organisms are arranged in different groups known as trophic level. This is the definition of trophic level. हमने organism को different groups के अंदर arrange कर दिया है और उन groups को कहते हैं trophic level. First is the T1. This is the simplest trophic level. ठीक है, हम यहाँ से start करेंगे. अब T1 के अंदर या ट्रॉफिक लेवल 1 में क्या आ जाते हैं? प्लांट्स. इट इंक्लूड्स ऑल दी प्लांट्स. सो दीज आर नोन एज प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स which are able to produce their food. They use sunlight, and with the help of light energy they are able to synthesize food. We know that plants के पास एक बहुत important process है photosynthesis का, and these are autotroph. They can prepare their food by utilizing energy and carbon dioxide from the atmosphere, and thus these are known as the food producer of the ecosystem. अब जो प्रोड्यूसर्स ने एनर्जी बनाई, तो प्रोड्यूसर की जो इनकी जो नंबर है वो भी बहुत ज़्यादा होता है इकोसिस्टम के अंदर. इसके बाद हमारे पास सेकेंड ट्रॉफिक लेवल आता है जिसको हम बोलते हैं T2, एंड द T2 ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स. प्राइमरी कंज्यूमर्स के इंक्लूड दोज एनिमल्स विच फीड ऑन प्लांट्स एंड ग्रासेस. इसके अंदर आ जाएंगे हमारे पास रैबिट, गोट, डियर, स्क्विरल्स और इस तरह के आंट्स. ठीक है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं जो बेसिकली फीड कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर, अपने से नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल पे फीड कर रहे हैं. सो एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन दिस प्लांट, दिस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द प्राइमरी कंज्यूमर, but some of the energy is lost in the form of heat. Not all energy is transferred to the next trophic level. इसके बाद आते हैं थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे. थर्ड ट्रॉफिक लेवल इंक्लूड्स द सेकेंडरी कंज्यूमर्स. ओके, सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंदर है हमारे पास एग्जाम्पल स्नेक्स है, फॉक्स है, ठीक है, स्पाइडर्स. और सेकेंडरी कंज्यूमर्स दे फीड ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर. तो एक चीज याद रखनी है कि जो ऊपर वाला ट्रॉफिक लेवल है वो अपने से नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल को एज अ फूड सोर्स यूज कर रहा है. सो सेकेंडरी कंज्यूमर दे फीड ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर.
So energy which is present in the body of primary consumer, that energy is also transferred to the next trophic level when those organisms consume the animals of lower trophic level. कुछ एनर्जी अगेन जहां से लॉस्ट हो जाएगी और वो हीट की फॉर्म में इन्वायरमेंट का पार्ट बन जाती है. फिर आते हैं हम T4 पे पास. T4 is the fourth trophic level and this T4 consists of tertiary consumers. इसमें हमारे पास आ जाती है एग्जाम्पल लाइन्स एंड देन बियर्स, और टर्शियरी कंज्यूमर्स दे फीड ऑन दी सेकेंडरी कंज्यूमर्स. ठीक है, तो इस तरह ये अपने से नीचे वाले लेवल पे फीड करें एनर्जी जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स के, अगेन इट विल बी ट्रांसफर टू द टर्शियरी कंज्यूमर्स एंड सम ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट. फाइनली देयर आर डिकम्पोजर्स विच वेक अप द फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल. डिकम्पोजर्स के अंदर बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड्स आ जाते हैं एंड देयर आर ऑल्सो डेट्रीवोर्स. डेट्रीवोर्स इंक्लूड वर्म्स, इंसेक्ट्स जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं और तमाम जो न्यूट्रिएंट्स हैं डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी से उनको वापस सॉइल में भेज देते हैं. तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं हमारे पास, ये ग्रुप्स एक दूसरे के ऊपर फीड करें और एनर्जी फ्रॉम वन ग्रुप इज ट्रांसफर टू अनदर ग्रुप एंड फाइनली इट कम्स टू द डिकम्पोजर्स विच अगेन रिटर्न दैट न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल. तो इस तरह एक साइकिल चल रहा है जिसमें इन्वायरमेंट के दरमियान और ऑर्गेनिज्म के दरमियान न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो रहा है. नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी. सो द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अवर इकोसिस्टम इज सन. ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूं कि सन इज द प्रोवाइड्स द सोलर एनर्जी बिकॉज सन एनर्जी से ही प्रोड्यूसर्स फोटोसिंथेसिस करें और उनके बाद जो बाकी फूड है वो ट्रांसफर हो रहा है टू एनिमल्स ऑफ अदर ट्रॉफिक लेवल. 1% ऑफ सोलर एनर्जी इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इकोसिस्टम. तो हम इसको देखते हैं क्या है ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट एंड हाउ दिस प्रोडक्टिविटी इज रिलेटेड टू डिफरेंट इकोसिस्टम. Productivity, it is the rate of biomass production. Biomass is the organic matter. Productivity in literal meaning we call it the yield. कितनी पैदावार हो रही है. तो हम इसको बात करते हैं कि एक ट्रॉफिक लेवल है या एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कितना ऑर्गेनिक मैटर बनेगा, कितना फूड बनेगा, दैट इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इकोसिस्टम. फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, उसके अंदर डिफरेंट प्लांट्स की स्पीशीज हैं and all those plant species carry out photosynthesis. As a result of photosynthesis they are producing carbohydrate. तो वो जो शुगर बना रही हैं, वो फूड जो बन रहा है, ऑर्गेनिक मैटर की जो प्रोडक्शन हो रही है, दैट इज द बायोमास प्रोडक्शन. एंड द टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर दैट इज प्रोड्यूस्ड इन दैट फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं कि एक खेत है, कोई फसल है उसमें क्रॉप, और उसमें कितनी पैदावार हो रही है, कितनी क्रॉप से हमें वीट की है तो कितनी हमें गंदम मिल रही है, वो उस पर्टिकुलर एरिया की प्रोडक्टिविटी होगी. सो सेम कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू डिफरेंट इकोसिस्टम. द एनर्जी एक्यूमुलेट्स इन द ग्रीन प्लांट्स और ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट इज नोन एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. सो प्रोडक्टिविटी की फर्दर दो टाइप्स होती हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. प्राइमरी मीन्स द फर्स्ट. सो ग्रीन प्लांट सबसे पहले वो सोलर एनर्जी को फिक्स करें, एनर्जी फूड बना रहे हैं, इस तरह एनर्जी को अपनी जो प्लांट्स हैं वो अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेते हैं. दिस इज द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. नाउ व्हेन कंज्यूमर्स फीड ऑन दीज ग्रीन प्लांट्स, एनर्जी ऑफ दीज ग्रीन प्लांट्स इज ट्रांसफर्ड टू कंज्यूमर. सो दैट इज द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. Okay, primary productivity is energy that is accumulated in the green plants, while secondary productivity is the energy that is present in the consumers who feeds on the green plants. Here we will discuss in detail primary productivity. तो उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो पहलू हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के. वन इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड अदर वन इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. Okay students, first discuss the gross primary productivity. It's the total solar energy trapped in the food material by photosynthesis. क्या मतलब है इसका कि जितनी भी एनर्जी प्लांट्स फिक्स कर लेंगे टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, दैट इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ओके, अब वो जितनी भी एनर्जी उन्होंने यूज की, सन से लेके फूड बनाया, फूड के बाद डिफरेंट उनकी बॉडी के अंदर प्रोसेसेस चलेंगे, लाइक सेलुलर रेस्पायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है,
फिर प्लांट्स में मूवमेंट नहीं होती, तो वहाँ पे एनर्जी से जो है वो ज़ाया नहीं हो रही, उसके बजाय एनर्जी दो प्रोसेसेस में लग रही है, वन इज ग्रोथ एंड द अदर वन इज रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन और ग्रोथ के अंदर तो एनर्जी यूटिलाइज होगी, बट स्टिल सम ऑफ द एनर्जी रिमेन्स। द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज लेफ्ट आफ्टर रेस्पायरेशन इज नोन एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? वो एनर्जी जो रेस्पायरेशन के बाद भी रह जाएगी, उसको हम बोलेंगे इट्स द नेट अमाउंट। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन शो दिस थ्रू इक्वेशन, net productivity of energy is equal to gross productivity minus energy lost in respiration. So I will explain it again. For example, we have a plant, उसने solar energy को use किया, photosynthesis start होगी, glucose बनी, अब ये total energy उसने जो utilize की, this is the gross primary productivity. अब इस एनर्जी में से कुछ एनर्जी, लेट्स सपोज अगर हम बात करें कि 100 किलो कैलोरीज एनर्जी प्लांट ने जो है उसने बनाई है, उसके पास है 100 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, तो उसमें से जो 80 कैलोरीज ऑफ एनर्जी है वो यूटिलाइज हो जाएगी फॉर कैरिंग आउट रेस्पायरेशन एंड फॉर अदर प्रोसेसेस दैट इज अकरिंग इन द प्लांट। लेकिन जो पीछे रह जाएगी 20% ऑफ एनर्जी, उसको हम बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एंड दैट 20% of energy is basically transmitted into the environment or it is transferred to the next trophic level. Okay, next is the productivity in land ecosystem. Productivity in land ecosystem generally rises with temperature about 30 degrees centigrade. तो प्रोडक्टिविटी का टेम्परेचर के साथ एसोसिएशन है कि जब भी टेम्परेचर किसी खास रेंज तक लाइक अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर राइज करेगा तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है। इट इज पॉजिटिवली रिलेटेड विद मॉइस्चर, तो टेम्परेचर के साथ भी पॉजिटिवली रिलेट कर रहा है और मॉइस्चर के साथ भी ये पॉजिटिवली रिलेट कर रहा है। बट इफ टेम्परेचर फर्दर इंक्रीजेस देन प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस। प्रोडक्टिविटी चेंजेस फ्रॉम जोन टू जोन, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एक इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट एरियाज हैं, डिफरेंट जोन्स हैं, तो उसमें भी प्रोडक्टिविटी वेरी कर रही है। किसी जगह पे लेट्स सपोज अगर वार्म क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट है, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्टिविटी वेरी करती है। लेट्स सी द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, highest productivity is seen in the warm wet zones where tropical forests are located. तो जहाँ पे tropical forest present है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी रेट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, वार्म एरियाज हैं। और सबसे कम प्रोडक्टिविटी डेजर्ट एरिया के अंदर होती है। डेजर्ट में प्लांटेशन बहुत कम है, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बहुत कम होता है, लाइक लिमिटेड अमाउंट में होगा, इस वजह से वहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। Next is the productivity in aquatic ecosystem. So aquatic ecosystem is the ecosystem जो aquatic environment के अंदर है, ठीक है, fresh water में है, oceans के अंदर जो organism है, they are making the aquatic ecosystem. Again, there are two important controlling factors for productivity in aquatic system. One is the light and the other one is nutrients. So light and nutrients are responsible for increase or decrease of productivity in aquatic ecosystem. Marine primary productivity is high near coastlines. Coastlines कौन से एरियाज होते हैं? जो साहिली इलाका होता है वहाँ पे प्रोडक्टिविटी मरीन इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिफरेंट फूड प्रिपेयर करेंगे, इसलिए प्रोडक्टिविटी वहाँ पे ज़्यादा है। लेट्स सी दी हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। ओके, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी हमारे पास कहाँ पे आती है? इट इज़ प्रेजेंट इन द कोरल रीफ एंड एल्गल बेड्स। कोरल रीफ्स और एल्गल बेड्स, एल्गी की डिफरेंट स्पीशीज हैं जो कि प्रेजेंट हैं इन द ओशंस, दे हैव मेड कंप्लीट कॉलोनीज ऑफ एल्गी, तो उनको हम बोलते हैं एल्गल बेड्स। इसी तरह कोरल रीफ्स जो हैं वो भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं इसको डिटेल में। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कोरल रीफ्स जो बना रहे हैं, दैट आर द माउंटेन्स ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये इनके अंदर प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। क्यों यहाँ पे ज़्यादा है? बिकॉज वाटर भी यहाँ पे, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर क्लियर है और लाइट इजीली पेनिट्रेट कर जाती है एल्गल बेड्स में और कोरल रीफ्स में। जब लाइट इजीली पेनिट्रेट करेगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होगा और अल्टीमेटली प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। वाइल द लोएस्ट प्रोडक्टिविटी अकर्स इन दी ओपन ओशंस। ओपन ओशन का मतलब है जो सरफेस लेयर होती है, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी रेट कम है। क्यों कम होता है? बिकॉज देयर इज लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द इल्यूमिनेटेड लेयर। न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे कम होते हैं ओपन एरिया के में, क्योंकि मोस्टली जो और न्यूट्रिएंट्स बना रहे हैं, प्लांट्स अगर बना रहे हैं जिनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स बोलते हैं,
या फिर जू प्लैंक्टन कहा जाता है, एनिमल स्पीशीज दैट आर प्रेजेंट इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट. सो बोथ दिस ऑर्गेनिज्म prepare food and that food goes to the underground part of the ocean. तो वो नीचे चला जाएगा, वहां पे से प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, लाइक एल्गल बेड्स एंड कोरल रीफ. तो ओपन ओशन में न्यूट्रिएंट्स का जो लेवल होता है, कंसंट्रेशन, वो कम होती है, इसलिए वहां पे प्रोडक्टिविटी भी कम होती है. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी फ्लो बिटवीन ट्रॉफिक लेवल. एनर्जी फ्लो इज यूनिवर्सल, लाइक ऑल एनर्जी फ्लो तमाम ट्रॉफिक लेवल्स के दरमियान हो रहे हैं. अप्रॉक्सीमेटली 10% ऑफ नेट एनर्जी प्रोडक्शन एट वन ट्रॉफिक लेवल इज पास्ड ऑन टू नेक्स्ट लेवल. सो एज आई हैव टोल्ड यू कि अगर 100% एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल में बन रही है तो 90% वो खुद यूज करेगा और उस ट्रॉफिक लेवल के ऑर्गेनिज्म, वाइल 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट लेवल एंड सो ऑन. 10 में से 9 यूज होगी, 1% फिर अगले ट्रॉफिक लेवल में चली जाएगी. देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट दिस एनर्जी फ्लो. फॉर एग्जाम्पल, इसमें अगर हम बात करें क्या फैक्टर्स हैं, लाइक रेस्पायरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डेफिकेशन इज द रिलीज ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एंड नॉन प्रेडेटरी डेथ. नॉन प्रेडेटरी डेथ का मतलब है ऑर्गेनिज्म दैट डाई बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ अ डिजीज से अगर वो मर जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉन प्रेडेटरी डेथ. तो बॉडी, एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस चल रहे हैं, तो एनर्जी उन प्रोसेसेस को चलाने में यूज हो जाती है. इसलिए ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो एनर्जी का जो फ्लो है उसको अफेक्ट करते हैं या एनर्जी का जो क्वांटिटी है उसको कम कर देते हैं. द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ मटेरियल दैट इज कंज्यूम्ड आल्सो इन्फ्लुएंसेस हाउ एफिशिएंटली एनर्जी इज ट्रांसफर्ड. ओके, न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ मटेरियल मतलब एक ऑर्गन जो ट्रॉफिक लेवल के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो किस किस्म का फूड कंज्यूम करें, उसके पे भी एनर्जी डिपेंड करती है. ठीक है, ऑर्गेनिज्म अगर अच्छा फूड यूटिलाइज कर रहा है, अच्छा फूड बना रहा है, तो उसके प्रोसेसेस भी एफिशिएंटली चलेंगे, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एंड दैट एनर्जी इज आल्सो ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट लेवल. बट इफ न्यूट्रिशनल क्वालिटी इज नॉट गुड दैट इज कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर्स, देन इट विल अफेक्ट द एनर्जी फ्लो. This figure shows the energy flow between different trophic levels. Okay, here we have producers, trophic level 1. So let's suppose these producers, they produce 10,000 kilocalories of energy. ठीक है, इतनी ज़्यादा वो एनर्जी प्रोड्यूस करे, तो ये एनर्जी कहाँ से आई? सन से एनर्जी आई. अब ये क्या करेंगे? They will utilize almost a lot of energy for carrying out different activities. Some of the energy is even lost. तो पीछे 100 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी, सॉरी 1000 कैलोरीज ऑफ एनर्जी कहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएगी? जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है उनके पास. Now primary consumers again use some part of this energy to carry out their function. फिर कुछ एनर्जी जो रह जाएगी वो ट्रांसमिट हो जाएगी to the next trophic level. और कितनी रहेगी हमारे पास? 900 calories of energy is used for carrying out different body activities. From this 100 kilocalories, again 90 calories of energy is utilized by these organisms for carrying out different physiological processes, while remaining 10 kilocalories of energy is transmitted to next level. अब ये कैसे next level को transmit होती है? जब ये organism, ईगल जब feed करेंगे अपने lower level के organism पे, तो इनकी body से जो 10 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी है वो इनकी बॉडी में चली ट्रांसमिट हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी. सो दिस इज हाउ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, एंड फाइनली हमारे पास डिकम्पोजर्स आ जाते हैं और फिर डिकम्पोजर्स दोबारा से इन पे फीड करते हैं और एनर्जी फाइनली और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में वापस भेज देते हैं. So this shows the energy flow between different trophic level, and we can see that energy is decreasing from low trophic level to the higher trophic level. Next is the significance of decomposers in energy flow. अब decomposers का बहुत important role है. Why? Because they process large quantity of organic material and return nutrients to the ecosystem in inorganic form. That is important. इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर, क्योंकि जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनकी बॉडी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से मिलकर बनी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी है. तो जब उनकी डेथ हो जाएगी, बैक्टीरिया, फंजाई फीड अपॉन दिस डेड ऑर्गेनिज्म एंड दे कन्वर्ट दैट ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक फॉर्म, एंड दोस इनऑर्गेनिक फॉर्म इज टेकन अप बाय द सॉइल, और सॉइल में फिर अगेन प्लांट्स जब वहाँ पे ग्रो करते तो वो इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होंगे प्लांट्स उनको ले लेंगे, अपनी बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे,
and they will make organic compounds. And this is how this cycle continues. Another important concept is that energy is not recycled, but it is released as heat during decomposition. तो energy basically recycle नहीं हो रही during decomposition. अगर हम decomposition के process की बात करें particularly, so in decomposition energy is not recycled but it is released mostly as heat. Heat की form में जब decomposition होगी तो energy basically release होती है, वो recycling उसकी नहीं हो रही. Recycling बाकी trophic level में जो हम बात करें उस केस में होगी. This is again very important concept of ecological pyramids. Ecological pyramids. It is a graphical representation designed to show the biomass productivity, number of organisms and energy found at each trophic level in a given ecosystem. So एक ecosystem के अंदर different trophic levels हैं, तो ecologist ने उन trophic levels को कैसे compare करना है with the help of ecological pyramids. और ये different number of organism जो एक ecosystem में present है and how much food is prepared by those organism and the quantity of energy transferred from one trophic level to another trophic level. So all of these factors are represented in the form of a graph और उसको हमने नाम दे दिया है pyramid का. और हम क्योंकि बात करें इकोसिस्टम की तो इसलिए हम इसको कहेंगे इकोलॉजिकल पैरामिड्स. एंड इट हैज थ्री टाइप्स: pyramid of number, pyramid of biomass and pyramid of energy. This slide shows different pyramids. First, I will tell you about pyramid of energy. This pyramid consists of different levels and each level represents the amount of energy that is available to that particular level. And with each setup, there is an energy loss of 90%. Okay, here we have different trophic level और different organism हैं, वो food prepare कर रहे हैं, energy बना रहे हैं, लेकिन primary producers के पास सबसे ज़्यादा energy होगी, इसके बाद energy कम होती जाएगी. So energy decreases from one trophic level to another trophic level. Here we have 100% of energy, but primary consumers can only get 10% of energy. Then secondary consumer के पास 1% होगी और जो tertiary level के consumer हैं उनके पास सिर्फ 0.1% energy जाती है. बाकी energy lost हो जाती है environment में and some of the energy is used to carry out physiological processes like respiration, growth, reproduction, etc. Third is the pyramid, second is the pyramid of biomass. यहाँ पे देखें तो it shows different level and each level represents the amount of biomass consumed by the level above it. Okay, तो यहाँ पे क्या शो करें कि कितना बायोमास अवेलेबल है एक पर्टिकुलर लेवल के अंदर और उससे ऊपर जो ऑर्गेनिज्म है वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं फिर. तो अगर हम देखें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को, दे हैव a lot of biomass like 809 gram per meter square of biomass is produced by these producer. अब बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन जो इससे ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर हैं जो इस पे फीड करेंगे उनकी बायोमास प्रोडक्शन है जस्ट 37 ग्राम पर मीटर स्क्वायर, जो कि बहुत कम है. अगेन व्हेन वी मूव अप टू द हायर लेवल द बायोमास प्रोडक्शन डिक्रीजेस. ठीक है, जो अवेलेबिलिटी है बायोमास की टू दैट पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल वो कम होती जाती है, डिक्रीज करेगी. तो बायोमास बेसिकली डिक्रीज क्यों कर रहा है? क्योंकि जब आप हायर लेवल की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको पता है कि एनर्जी भी कम होगी है, एनर्जी कम होगी और ऑर्गेनिज्म का नंबर भी कम होता है, ऑर्गेनिज्म भी कम है, एनर्जी भी कम है, इसलिए कम फूड की प्रोडक्शन होगी, लेस बायोमास प्रोड्यूस होगा. सो दैट इज वाई बायोमास इज डिक्रीजिंग व्हेन वी मूव फ्रॉम लो ट्रॉफिक लेवल टू द हायर ट्रॉफिक लेवल. थर्ड इज द pyramid of number. So pyramid of number shows the number of organism at each trophic level. तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है. यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास शो किया हुआ है कि वी हैव 15 लाख स्पीशीज ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. लेकिन जैसे ही हम ऊपर की तरफ मूव करते जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखें बहुत ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है, तो पॉपुलेशन का साइज क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है. इट डिक्रीजेज एज वी मूव अपवर्ड. तो ऊपर जाएं, यहाँ पे हमारे पास 15 लाख है, ऊपर हमारे पास आ रहे हैं 2 लाख, देन 90,000 एंड थर्ड लेवल कंज्यूमर में मजीद नंबर डिक्रीज होता जाता है. तो जैसे ही आप लोअर से हायर ट्रॉफिक लेवल की तरफ जाएंगे, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म रिड्यूस होते जाते हैं. क्यों नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म रिड्यूस होते जा रहे हैं? फिर एनर्जी भी कम अवेलेबल है और बायोमास की प्रोडक्शन भी कम होगी. सो दिस इज हाउ दीज थ्री पैरामिड्स दे आर
interrelated to each other, but one thing is common, that both energy, biomass production and the number of organisms decreases when we move from low trophic level to the higher trophic level. I hope this lecture is clear to you. We have discussed different concepts related to energy flow, concept of productivity and ecological pyramids. Thank you so much. Have a good day.